So now the next section is what is the importance of species diversity to ecosystem. We are going to try and understand the importance of this diversity. Do we really need, the question is, do we really need all this diversity around us? Okay, so obviously the answer is yes, we need this variety around us, because every different variety of organism plays some different important role for the ecosystem. जैसे हम different insects की बात करें, some insects are harmful but some are useful to us humans. Same way, some can be useful for the plants but maybe some are harmful for the plants. तो in one or the other way, जो हार्मफुल है वो शायद ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को कम करके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकते हैं, और जो यूजफुल है वो उनको फ्लरिश करने में मदद कर रहे हैं. तो इन सम और द अदर वे एवरी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूजफुल टू द इकोसिस्टम टू मेंटेन अ बैलेंस इन द इकोसिस्टम. इवन यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन. ओके, एक ही टाइप का हर्बीवर एनिमल रहेगा तो कार्निवोर्स अगर उसको हंट कर देंगे तो हर्बीवर्स खत्म हो जाएंगे. तो हाउ विल द प्लांट पॉपुलेशन कम अंडर कंट्रोल, बिकॉज द हर्बीवर्स ईट द प्लांट पॉपुलेशन. तो ये वैरायटी होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर 10,000 टाइप के हर्बीवर्स है तो उसमें से एक टाइप अगर गायब हो जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट वी कैन से नेचुरल कैलामिटी और वॉट एवर, तो एटलीस्ट द रिमेनिंग different varieties of herbivores will maintain the ecosystem. So you see, that's the reason why so much biodiversity is essential to balance the ecosystem. So उन्होंने question पूछा है, what if few species are lost permanently? See, if very few species are lost permanently, maybe the role that they played is missing in the ecosystem, but maybe there is another species which is somewhat playing the similar role. तो वो इकोसिस्टम कहीं ना कहीं पे बैलेंस हो जाता है. जैसे डायनासोर्स दुनिया से गायब हो गए तो दुनिया चलना बंद नहीं हो गई. The earth evolved, the ecosystem evolved, and the organisms had flourished after that. Okay, so if few species are lost, there is no damage as such. But then इसका मतलब ये नहीं कि we allow the species to get extinct. Okay, जैसे हम कार्निवोर्स की बात करें तो अगर टाइगर ख़त्म हो रहे थे तो हम लोग ये बोल के नहीं चल सकता था कि let the tigers extinct, we have lions and we have other panthers, because the tigers could survive in a different type of ecosystem and they can indirectly protect the forest. तो इसीलिए उनको बचाना उतना ज़रूरी था. So in certain cases we can say the answer is yes, whereas in certain cases obviously the answer is no, we cannot allow the species to become extinct. Okay, then they are talking about a community is a group of different populations of organisms. Okay, a community is said to be stable if the biomass production remains constant. और biomass कौन बनाता है? The living organisms. Okay, तो ये कांस्टेंट होना चाहिए तो ही कम्युनिटी स्टेबल रहेगा और तो ही इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा. और ये कांस्टेंट कैसे होगा? इफ़ द लिविंग क्रीचर्स आर इन बैलेंस्ड नंबर्स. ओके, देयर नंबर इज नॉट ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग, देयर नंबर इज बैलेंस्ड, तो द बायोमास प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट एंड द कम्युनिटी विल रिमेन स्टेबल. देन इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, मतलब इतना to withstand the disturbances and recover quickly. तो ये जो organisms होते हैं they should like even if they get affected by natural calamities, so they should be able to bear this and recover quickly from it, and again when the favorable climate comes they should be able to flourish. Then only the ecosystem can stay stable. Then it must also be resistant to invasive species. तो ये जो नेटिव स्पीशीज़ होती है जो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहती है, they should be strong enough to survive even if some foreign species, invasive species are generally the foreign varieties which are brought to that environment or which accidentally come to that environment and they start flourishing over there. तो उनके फ्लरिश होने की वजह से the native species should not get affected, they should be more dominant and more resistant. Okay, David Tillman, he carried out various field experiments and proved that species richness does help the stability of an ecological community. So उसने ये experimentally prove करके बता दिया है जितना ज़्यादा variety of species है उतना ज़्यादा वो ecosystem stable है. रिच डाइवर्सिटी लीड्स टू लेसर वेरिएशंस इन बायोमास प्रोडक्शन. इसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहे तो बायोमास प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होएगा, वो स्टेबल रहेगा. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस. ओके, देन अनदर साइंटिस्ट दैट इज Paul Ehrlich
करके, he was an ecologist. Okay, now basically ecologists are the people who study this ecosystem. Okay, and he insisted on the significance of this biodiversity. He gave another hypothesis that is called the rivet-Popper hypothesis. Now basically what is a rivet? Rivet is a small mechanical screw-like fastener जो aeroplanes के parts को जोड़ के रखता है, ठीक है. So he gave a what we can say a hypothesis कि उसने वो aeroplane का एक example consider करके इस concept को समझाया है. He compared the aeroplane to an ecosystem. ओके, और उसने बोला कि ये जो स्पीशीज़ है इकोसिस्टम की वो उन रिवेट्स की तरह है, छोटे छोटे स्क्रूज की तरह है, जो रिवेट्स जैसे एरोप्लेन के टुकड़ों को जोड़ के रखते हैं, वैसे ये स्पीशीज़, हर एक छोटी छोटी स्पीशीज़ जो है वो इस इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखती है. तो अगर थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स होते हैं, क्योंकि एरोप्लेन काफ़ी बड़ा होता है तो बहुत सारे रिवेट्स है उसके डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने के लिए, वैसे ही इकोसिस्टम में बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं उसको बैलेंस रखने के लिए. तो सोचो अगर हर एक पैसेंजर डिसाइड करता है कि एक एक रिवेट वो चुरा लेगा, ओके, टू पॉप आउट द रिवेट्स, तो अगर उसको हम कंपेयर करें इकोसिस्टम के साथ तो एक एक स्पीशीज़ गायब हो रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ धीरे धीरे करके. तो इनिशियली ज़्यादा टर्बुलेंस, जैसे थोड़े रिवेट्स गायब होते हैं ना तो एरोप्लेन का फंक्शनिंग इमीडिएटली ख़राब नहीं होने वाला, तो ज़्यादा टर्बुलेंस फील नहीं होएगा. बट स्लोली जैसे जैसे ज़्यादा रिवेट्स पॉप्ड आउट होंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी अ वेरी सीरियस थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द एरोप्लेन, क्योंकि उसके पार्ट्स डिसमेंटल हो रहे हैं तो इट विल क्रैश. सेम वे इफ द स्पीशीज स्लोली वन बाय वन स्टार्ट बिकमिंग एक्सटिंक्ट तो इकोसिस्टम विल गेट डिस्टर्ब्ड. ओके, सो इट विल ऑल्सो मैटर कि कौन सा रिवेट पहले निकाला जा रहा है. तो अगर एरोप्लेन के मेन पार्ट्स का ही रिवेट्स पहले निकाले गए तो एरोप्लेन जल्दी क्रैश डाउन होएगा. सेम वे इकोसिस्टम की अगर इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ पहले गायब होने लगी या एट अ फास्टर रेट गायब होने लगी तो नेचुरली इट विल मैटर कि एट व्हाट टाइम स्पीड द इकोसिस्टम विल गेट डिस्टर्ब्ड. तो वही उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कि रिवेट्स एट की पोजीशन, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, जैसे जो विंग्स को एरोप्लेन से जोड़ते हैं, अगर उनको निकाल दिया गया तो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी. सो सेम वे वी कैन से द रिलेशनशिप बिटवीन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम इज ऑल्सो द सेम वे, बट it's not exactly a linear relationship, okay, but certainly loss of species are going to some थोड़ा बहुत लॉस ऑफ स्पीशीज़ may not poses a threat to the ecosystem initially, but कुछ important species अगर लॉस हो रही है तो it is going to be a threat in a very short span of time. That is what I told you just now, okay, because it will affect the food chain, the food web, the energy flow, the natural cycles, that is the nutrient cycles, etc. So in short, it will affect the balance of the ecosystem.